Assalamu alaikum. So far, we have studied the nature of simultaneous equation models, that there exists a two-way relationship between the variables, and that leads to the violation of the assumption of classical linear regression model that our explanatory variable and error term should not be correlated. Because if explanatory variable and the error terms are correlated, then we cannot apply OLS to our equation for estimation. And if we do apply OLS, then the estimates will be biased and inconsistent. Moreover, we have seen that there exists a problem of identification of the simultaneous equations. And we had studied three types of identifications, that is under identification, exact identification, and over identification. And also, we have seen the rules for the identifications of the simultaneous equation models. Today, we are starting with the chapter number 20, which is the simultaneous equation methods. कि हम किस तरह से हमारी जो simultaneous equation models हैं उनको estimate कर सकते हैं. So there are basically two approaches to the estimation of such models. If we consider general M equation model, in M endogenous variables, we may adopt two approaches to estimate the structural equation. First one is the single equation methods, also known as limited information methods, and the other one is system methods, and we call it full information methods as well. Now, what happens in the single equation methods is that we estimate each equation in the system of simultaneous equations individually, separately, taking into account any restrictions based on that equation without worrying about the restrictions on the other equations in the system, hence the name limited information. इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं हमारे पास system of equation है, either we have two equations, three equations, or four equation, or any number of equation. So we will estimate each equation separately. और एस्टिमेट करते हुए हम सिर्फ उस पर्टिकुलर इक्वेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको कंसिडर करेंगे without taking into account the information that is available in the other equations of the model. ठीक है, तो ये सिंगल इक्वेशन मेथड होगा. और द अदर मेथड सिस्टम मेथड्स जो है, वी एस्टिमेट ऑल द इक्वेशंस इन द मॉडल साइमल्टेनियसली, सबको इकट्ठा एस्टिमेट करते हैं, taking due account of all restrictions on such equations by the omissions or absence of some variables, hence the name full information. Means आप किसी एक equation को focus करके उसको estimate नहीं कर सकते, आप पूरे system को as a whole estimate करते हैं, और you take into account the information of the complete system of all the equations. अच्छा, यहाँ पर एक simultaneous equations का मॉडल है. Obviously we have four equations, so we know that we have four endogenous variables from y1 to y4, and we have two exogenous variable x1 and x2. ठीक है. अच्छा, अब वैसे तो जो simultaneous equations की जो नेचर है उस हिसाब से देखा जाए तो हमें फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड यूज करना चाहिए, ताकि we consider information that is available in the complete model, और जो भी restrictions हैं हर equation की वो हमें पता होनी चाहिए. लेकिन systems मेथड यूज करने में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज अब जैसे यहाँ पे तो हम सिर्फ फोर इक्वेशंस कह रहे हैं ना, हो सकता है आपके सिस्टम में देर आर मोर देन फोर इक्वेशंस, 5 6 7 8, एनी नंबर ऑफ इक्वेशंस, और उसमें उतने ही पैरामीटर्स होंगे एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस हर इक्वेशन के, और आपको उनको एस्टिमेट करना है. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम आता है कि जो हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस के पैरामीटर्स होते हैं, दे आर हाईली नॉन लीनियर. देन अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, तो अगर एक इक्वेशन में कोई एरर होगा तो वो एस्टिमेशन में बाकी इक्वेशंस में भी, पूरे सिस्टम में भी ट्रांसमिट हो सकता है. इसी तरह इस वजह से ये जो सिस्टम मेथड्स होते हैं ना, जिसमें सारी इक्वेशंस को एक साथ लेके एस्टिमेट करना होता है, उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम फेस किया जाता है कि एक इक्वेशन का एरर बाकी सिस्टम में ट्रांसमिट हो जाता है. इसलिए कोशिश की जाती है कि सिंगल इक्वेशन मेथड्स आर यूज्ड.
अच्छा, और यहाँ पर हमारे जो कोर्स में है विल बी स्टडिंग the single equation methods which are called ordinary least square OLS, indirect least squares ILS and two stage least squares 2SLS. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि ये सिंगल इक्वेशन मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे आते हैं. अच्छा, अब हम बात कर चुके हैं कि वी कैन नॉट अप्लाई OLS टू द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स ड्यू टू द correlation between the explanatory variable, endogenous explanatory variable and the error term. हम अगर OLS यूज भी करेंगे तो एस्टिमेट्स हमारे बायस्ड आएंगे. लेकिन अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वी कैन यूज OLS बट देयर इज अ केस, अ पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉडल जिसमें हम OLS को यूज कर सकते हैं एंड दीज आर कॉल्ड रिकर्सिव मॉडल्स. अच्छा, तो ये सारी वही बात है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि इफ देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एरर टर्म एंड एंडोजेनस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स तो हम जो भी एस्टिमेट्स फाइंड आउट करेंगे बाय OLS दे विल बी बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट. तो अब वो सिचुएशन कौन सी है जिसमें वी कैन अप्लाई OLS टू ईच इक्वेशन सेपरेटली. तो रिकर्सिव और ट्रायंगुलर मॉडल जो हैं उसकी एग्जांपल के लिए हम ये वाला मॉडल देखते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड इन योर बुक बाय 20.2.1. In this, we have three equations. That means we have three endogenous variables, y1, y2 up to y3, and we have two exogenous variables, x1 and x2. Now, if you closely look at the first equation, you can see that y1 is the function of x1 and x2. इसमें कोई और endogenous variable हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब कोई और y नहीं है. ठीक है, means a y1 is affected only by the exogenous variables, not other endogenous variables in the system. Then if we look at the equation number 2, then y2 is the function of y1, x1 and x2. अब exogenous variables को साइड पे कर देते हैं. exogenous variables आप देख रहे हैं तीनों equations में आ रहे हैं, लेकिन y2 is also function of y1. लेकिन क्या y1 was the function of y2? No. y2 y1 को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन y1 y2 को इफेक्ट करता है. तो मीन्स देयर इज वन वे साइमल्टेनियस रिलेशनशिप गोइंग फ्रॉम y1 टू y2. y2 से y1 पे नहीं जा रहा. ठीक है, तो अब अगर y1 की इक्वेशन में y2 नहीं है और उसके राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक्सोजेनस वेरिएबल है तो वी कैन अप्लाई OLS टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. क्योंकि इन दिस केस आपका जो अगर आप इक्वेशन 2 में देखें, प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन 2 में y2 फंक्शन है y1 का, x1 का, x2 का और एरर टर्म का. तो अगर साइमल्टेनियस टू वे साइमल्टेनियस रिलेशनशिप होता तो y1 और u2 आपस में कोरिलेटेड होते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपका y1 y2 को इफेक्ट कर रहा है लेकिन y2 y1 को इफेक्ट नहीं कर रहा. तो आप y1 वाली इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन पे भी OLS अप्लाई कर सकते हैं और आप y2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इफ यू लुक एट y3 की इक्वेशन देखें तो इट इज इफेक्टेड बाय y1 y2 एंड द एक्सोजेनस वेरिएबल्स. अब हमने ये देखा है कि y1 की इक्वेशन में y3 नहीं है, y2 की इक्वेशन में भी y3 नहीं है, सिर्फ y3 की इक्वेशन में y1 और y2 है. तो y3 की एंगल से हम देखें तो y3 is only affected by y1 and y2, लेकिन जो y3 है वो ना y1 को इफेक्ट कर रहा है ना वो y2 को इफेक्ट कर रहा है. तो देयर इज वन वे साइमल्टेनियस रिलेशनशिप. तो इस सूरत में भी जो y1 और y2 है उनका कोरिलेशन नहीं बनता विद u3. दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो अप्लाई OLS हियर. ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ अजम्पशंस ली हुई एरर टर्म्स की. हमारी जो एरर टर्म्स हैं u1 u2 एंड u3 उनका आपस में भी कोई कोरिलेशन नहीं है. अगर वन बाय वन इक्वेशन को देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक्सोजेनस वेरिएबल्स है राइट हैंड साइड पे which are by assumption uncorrelated with the disturbance term. Now we can apply OLS to this equation because error term and explanatory variables are not correlated. इसको अगर आप isolated देखें इक्वेशन वन को तो इसमें जस्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो एक्सोजेनस है. तो you can simply apply OLS to this equation. Now if we consider the second equation तो you can see यहाँ पर two exogenous variables हैं और एक endogenous variable है y1
जो कि y2 को एक्सप्लेन करता है या उसको इफेक्ट करता है। अब अगर यहाँ पर y1 और u2t अनकोरिलेटेड हैं तो हम OLS अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या ये अनकोरिलेटेड है? जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया, जी ये अनकोरिलेटेड है। क्यों? क्योंकि U1 जो Y1 को इफेक्ट करता है इज बाय अजम्पशन अनकोरिलेटेड विद U2। तो वो U2 के साथ तो अनकोरिलेटेड है, तो उधर से भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। और दूसरा आपका वन वे साइमल्टेनियस रिलेशनशिप है, y1 इज इफेक्टिंग y2 बट y2 इज नॉट इफेक्टिंग y1। सो दैट मीन्स y, अगर हम आइसोलेशन में इस इक्वेशन को देखें, y इज एन exogenous variable और predetermined variable as far as y2 is concerned। इसी तरह से आप अगर इक्वेशन 3 को देखें तो अगेन इसमें भी y1 और y2 y3 को इफेक्ट कर रहे हैं, बट y3 डज नॉट इफेक्ट y1 एंड y2। तो यहाँ पर भी y2 and y3 uncorrelated है with u3। So in recursive system OLS can be applied to each equation separately। तो बेसिकली रिकर्सिव सिस्टम हमने क्या समझा, क्या हो गया कि जिसमें आपके जो एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं उनमें वन वे साइमल्टेनियस रिलेशनशिप होता है। इक्वेशंस इस तरह की होती हैं जो वन वे रिलेशनशिप दिखा रही होती हैं, तो उसमें आपके एंडोजेनस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और अर टर्म में कोरिलेशन नहीं होता, तो यू कैन इजीली अप्लाई OLS। तो इसमें हमारे पास जो यूजुअल साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम होता है वो नहीं आता। ठीक है, ड्यू टू द सेम रीजन कि आपका जो y1 है दैट इज इफेक्टिंग y2 बट y2 डज नॉट इफेक्ट y1, एंड सिमिलरली y1 and y2 influence y3 but y3 does not affect y1 and y2। तो जो ईच इक्वेशन है दैट इज एग्जिबिटिंग अन यूनिलेटरल कॉजल डिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने देख लिया कि OLS हम कब अप्लाई कर सकते हैं टू ईच इंडिविजुअल इक्वेशन व्हेन देयर इज a situation of recursive model। Then there is the method of indirect least square। अब indirect least square का जो मेथड है वो हमेशा exactly identified equations के लिए, उनकी estimation के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें अच्छा, इसके स्टेप्स वही हैं जो हम बेसिकली स्ट्रक्चरल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट स्टेप ही वो है। वी ऑब्टेन रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस फ्रॉम द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस। और वो कैसी होंगे रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस? जिसमें आपका जो एंडोजेनस वेरिएबल है इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली exogenous and predetermined variables and the stochastic error term। अच्छा, जब हमारे पास रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी तो सेकंड स्टेप में वी विल अप्लाई OLS टू द रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस इंडिविजुअली। ठीक है, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक्सोजेनस वेरिएबल हैं तो आपके पास साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम नहीं आ। तो इस तरह से हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म जो एस्टिमेट्स हैं वो आ जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि वो जो रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स आए हैं उसमें से हम स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। The procedure of ILS indicates that the name ILS derives from the fact that structural coefficients are obtained indirectly from the OLS estimates of the reduced form coefficients। Indirect लीस्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पहले आप रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उनसे आप स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है, डिमांड फंक्शन है और सप्लाई फंक्शन है। इसको अगर हम यहाँ पर ही देखें, व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, उससे वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है और कौन सी इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाइड है। तो डिमांड फंक्शन में आप देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई दोनों में दो दो एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं, QT एंड PT। डिमांड इक्वेशन में एक एक्सोजेनस वेरिएबल है विच इज XT विच शोज द इनकम और एक्सपेंडिचर, लेकिन सप्लाई इक्वेशन में कोई एक्सोजेनस वेरिएबल नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वेरिएबल में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो, तो उसकी वजह से दूसरी इक्वेशन आइडेंटिफाइड हो जाती है। इन दिस केस आपका सप्लाई फंक्शन इज आइडेंटिफाइड क्योंकि डिमांड में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, और डिमांड फंक्शन इज not identified because
सप्लाई में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे डिमांड को आइडेंटिफाई किया जा सके। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इन स्ट्रक्चरल इक्वेशंस से बनाएंगे रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस। दो एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास दो ही रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस बनेगी। और हम बार बार ये पढ़ चुके हैं कि आपके रिड्यूस फॉर्म आर द फंक्शन ऑफ ओनली एक्सोजिनस वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स टी है और एरर टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, now notice that the each reduced form equation contains only one endogenous variable, which is the dependent variable and which is a function solely of exogenous variable x and the disturbance term, ठीक है। तो अब अगर आपकी रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस में साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है, साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन अप्लाई ओएलएस। ओएलएस अप्लाई करके हम ये अपने जो पैरामीटर्स हैं उनके एस्टिमेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक पाई नॉट हैट, पाई वन हैट, पाई टू हैट एंड पाई थ्री हैट, ठीक है। अब अगर आप इनको देखें तो ये वैसे ही एस्टिमेट्स हैं जो हमारी एक सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन के होते हैं। जैसे उसमें आपका बीटा वन हैट, बीटा नॉट और बीटा वन हैट होता है। तो बीटा वन हैट क्या होता है, समीशन एक्स टी वाई टी डिवाइड बाय समीशन एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी और एक्स टी का टर्म्स में बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला उसी तरह से आया है। तो फॉर्मूला सेम आए हैं, आपके एस्टिमेट सेम आए हैं जो ओएलएस के आते होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब डिटर्मिन हमने क्या करना था, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम स्ट्रक्चर कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करें फ्रॉम द रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स। अब रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स आ गए हैं तो उसमें से हम स्ट्रक्चर कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले ही स्टैब्लिश कर ली है हमने कि हमारी जो सप्लाई इक्वेशन है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी था कि डिमांड में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जो कि मौजूद था एक्स टी। तो आपकी सप्लाई इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, तो हम उसके स्ट्रक्चर कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट। और यहाँ पे ये भी मैं बताती चलूँ कि जैसे कि सप्लाई डिमांड इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड है तो हम उसके कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो सप्लाई के कोफिशिएंट्स जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन है उसके क्या हैं, बीटा नॉट और बीटा वन। तो बीटा नॉट और बीटा वन को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर बीटा नॉट इक्वल्स पाई टू माइनस बीटा वन पाई नॉट एंड बीटा वन इक्वल्स पाई थ्री डिवाइडेड बाय पाई वन। फिर आप इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालेंगे तो उस पे सब पे हमने हैट अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इस तरह से जो हम इनडायरेक्टली स्क्वायर अप्लाई करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट इनहेरिट्स ऑल द asymptotic properties of the reduced form coefficients such as consistency and asymptotic efficiency। मीन्स इसमें जो एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो होंगी, फुलफिल होंगी as we increase the sample size। asymptotic का मतलब है as we increase the sample size। तो आपके जो एस्टिमेटर्स हैं वो कंसिस्टेंट भी होंगे और वो एफिशिएंट भी होंगे। ILS estimators of supply function are biased, but the bias disappears as the sample size increases indefinitely। ये वही ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन किया है। सो हमने ये देखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स में हम दो अप्रोचेज हैं, सिंगल इक्वेशन मेथड एंड सिस्टम्स मेथड। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम सिंगल इक्वेशन मेथड यूज़ करें क्योंकि जो सिस्टम मेथड्स है उसकी थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। और जब हम सिंगल इक्वेशन मेथड्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमने बताया कि हमारे पास तीन तरह के मेथड्स होते हैं, OLS, ILS एंड 2SLS, जिसमें से हमने इस वीडियो में दो मेथड्स किए हैं, विच इज़ OLS विच इज़ यूज्ड इन केस ऑफ रिकर्सिव मॉडल जिसमें हमारे पास वन वे साइमल्टेनियस रिलेशनशिप होता है, एंड ILS इनडायरेक्टली स्क्वायर जिसमें हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन से रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उन रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस पर OLS अप्लाई करते हैं। then we find out the estimates of the reduced form equations और उन reduced form coefficients से हम structural coefficients find out करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड मेथड करेंगे विच इज टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर्स 2SLS। थैंक यू।